वैसे फेमिना मिस इंडिया का जो ये ताज है, ये ना सिर्फ मेरा सपना है, मेरी खुशनसीबी भी है कि मुझे ये मिला। इसमें मेरे माता पिता की मेहनत है, इसमें मेरी मेहनत है। तो ये कहना तो शायद सही नहीं होगा कि ऐसे ही किसी दिन सोचा और आज मुझे ताज मिल गया और पता नहीं कैसे मिल गया। इसके पीछे बहुत सारा खून, बहुत सारा पसीना, बहुत सारा सब्र और बहुत सारा भगवान पे भरोसे के बाद मुझे ये मिला है। और ये कहना चाहूँगी कि आप अगर कुछ भी सपना देखते हैं तो उसमें एक लॉजिक ज़रूर होता है कि यार इस वजह से आप ये सपना नहीं पूरा कर सकते। या मेरे केस में देखें तो मैं उज्जैन से थी और किसी ने किया नहीं था उसके पहले मिस इंडिया। मेरा ऊपर एक्चुअली इतने सारे लोगों का हाथ नहीं था जो मुझे गाइड कर पाए कि मिस इंडिया में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर अगर आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं ना तो ऊपर वाला अपने आप रास्ते बनाते ले जाता है। ऊपर वाले के ऊपर तो कुछ है नहीं, तो अपने आप रास्ते बनते जाते हैं, अपने आप आपके दरवाजे खुलते जाते हैं। In last 6 hours, the severe cyclonic storm Dana has moved with the speed 10 km/h. Now lies over northeast Bay of Bengal, and it is about 150 kilometers southeast of Paradip and 180 kilometers southeast of Dhamra and 250 kilometers south of Sagar Island. It is likely to move north-northwestward and cross North Odisha and West Bengal coast between Puri and Sagar Island, very close to Vitarkanika and Dhamra during this midnight of today, 24th October and morning of 25th October. As a severe cyclonic storm, while crossing as a severe cyclonic storm, wind speed will be around 100 to 110 km/h, gusting to 120 km/h. Due to which wind warning is being given. Wind warning mostly, if we see the district level wind, then 100 to 110 km/h, gusting to 120 km/h, very likely in the district of Balasore, Bhadra, Kendrapada and Jagatsinghpur, and 60 to 80 km, gusting to 90 km, very likely to prevail in the district of Mayurbhanj, Jajpur, Cuttack, and 60 to 70 km/h, gusting to 80 km/h in the district of Puri, Khurda, Dhenkanal and Keonjhar. If we see Sundargarh district also, wind speed is very likely to prevail in the district of Sundargarh, around 50 to 60 km/h, and 40 to 50 km/h wind speed will be prevailing over the district of Sambalpur, Deoghar, Annugul, Baud, Nayagarh and Ganjam district. And if we see the rainfall warning, extremely heavy rainfall warning, any red color warning is given to the district of Mayurbhanj, Baleswar, Bhadrak, Kendrapada, Jagatsinghpur, Jajpur and Cuttack district. Orange color warning is given to Puri, Khurda, Nayagarh, Dhenkanal. And for 25th October, red color warning means heavy to very heavy rainfall at a few places with isolated extremely heavy rainfall, very likely in the district of Angul, Kendrapada, Jagatsinghpur, Cuttack, Khurda, Jajpur, Bhadrak, Dhenkanal and Puri district. And orange color warning is given for the district of Keonjhar, Mayurbhanj, Baleswar, Nayagarh, Baud and Sonpur. How the weather would be in capital city Bhubaneswar as it has witnessed a little bit rainfall? Bhubaneswar capital city, since morning it is raining, but it was light rain was there. Now rainfall activity is increasing and it will increase throughout the night, and rainfall activity will be there, and heavy to very heavy rainfall activity is very likely in the. लगातार उनके सुख दुख में उनका साथ देने की कोशिश करती हूँ, उनकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करती हूँ। उन्होंने मुझ पर काफी भरोसा जताया है, तभी तो पार्टी ने भी भरोसा जताया है। तो आने वाले दिनों में जनता मुझे चुनेगी, मुझे पूरा यकीन है, मैं उनके लिए काम करूंगी। आप गुरु जी से मिले, क्या बात? गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, उनका आशीर्वाद ही बहुत बड़ी संपदा है हम लोगों के लिए, और हमें पूरा विश्वास हो गया है कि मैं निश्चित रूप से जीतूंगी और जनता के लिए काम करूंगी। आपके अपोजिट मतलब कि आपके
कंटेस्ट में जी जो एक वेटरन बीजेपी लीडर हैं जो 7 बार से यहाँ जी जी देखिए जनप्रतिनिधि को जनता की आवाज सुननी चाहिए और ये राजधानी है, राजधानी की क्या हालत है आप लोगों से छिपी नहीं है। जब जनता ने इतनी बार मौका दिया है तो निश्चित रूप से इसे सुधारना चाहिए था, बड़े विजन के साथ काम करना चाहिए था। हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने बहुत कम समय में इतना बड़ा फ्लाईओवर बना के दिया और इतनी सारी योजनाएं, अभी उन्होंने कहा कि 12 फ्लाईओवर बनाएंगे, यहाँ जाम से छुटकारा दिलाया कई इलाकों को उन्होंने। तो हमें उनके सपनों को पूरा करना है और बड़े विजन के साथ और जनता की छोटी छोटी रोजमर्रा की समस्याएं उनको दूर करना है, उनको भी, और इस राज्य को आगे बढ़ाने में अपनी सरकार का, महागठबंधन का और अपनी पार्टी का हाथ बटाना है। आप राजधानी की प्रत्याशी जी। बन रही, क्या राजधानी के बारे में आपका क्या नजरिया है, कैसा होना चाहिए? देखिए यहाँ जन्मी हूँ, पली बढ़ी हूँ, तो जाहिर सी बात है कि इसको संवारने का भी एक जुनून है। इसे संवारूंगी और इसमें रहने वाले तमाम लोगों को खुशहाल बनाने में अपनी पार्टी और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ बटाऊंगी। The atmosphere is very festive, it's euphoric, and he's going to be winning the second term with a historic margin. Last time when he won, he got over 70,000 votes. This time he will cross that number as well. Because Maharashtra in these 5 years has seen the worst kind of politics where ED, CBI, IT, everything was used. Maharashtra state treasury has been looted. There have been only lies being spread. 2 political parties have been broken. So all of that is in the minds of the people. The people had voted for Mahavikas Aghadi in the Lok Sabha. I continue to say that was just a trailer. The blockbuster movie of Mahavikas Aghadi will be released produced by the people of Maharashtra and the will of Maharashtra, and we will form a government in the after 23rd November. Can you tell me how many seats is BJP contesting from? Can you tell me how many seats is Eknath Shinde contesting from or Ajit Pawar contesting from? They are all busy in Delhi and trying to get some seats out of Amit Shah. It is a sad reality today that every decision of Maharashtra is being taken by 2 people, Narendra Modi and Amit Shah. That is the unfortunate reality. So before they point a finger at us, they must remember rest of the fingers are pointing back at them. Yesterday we had a press conference and we have given you the entire scenario of how we are contesting. It is surprising that they continue to point a finger at us. देखिए, ये जो नशे की चुनौती है हमारे सामने, ये काफ़ी अलार्मिंग प्रोपोर्शन में राइज हो रही थी और इसी दिशा में हमने डिस्ट्रिक्ट शिमला में अपने कमिटेड और विथ कन्विक्शन, फुल कन्विक्शन के साथ जो है वो पिछले कुछ समय से अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। नशे की चपेट में जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ट्रैप हो रही है। अलग तरह के लोग जो हैं वो किस तरह से नशे की चपेट में और ट्रैप में आ जाते हैं, ये भी सारे हम रीजंस जानते हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए डिस्ट्रिक्ट शिमला में हमने प्रॉपर प्लानिंग और कंसर्टेड एफर्ट करके ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, पुलिस स्टेशन लेवल और हमारे ऑफिसर जो है फुल कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं और पिछले 1-1.5 महीने में हमने अच्छी सफलताएं प्राप्त की हैं, जिसमें 3-4 ऐसी सिंडिकेट्स जो हैं जिनको बस्ट किया है, जो कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में स्लिप्ट पाए गए थे और जो हमारा सोशल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड जो एक इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम हमने डेवलप किया है डिस्ट्रिक्ट शिमला में, उससे हमें बहुत सहायता मिल रही है। और ये एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जिसमें महिला मंडल हैं, स्कूल में कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं जो पहले ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ से अफेक्टेड रहे हैं, जो एडिक्ट रहे हैं और अब बाहर आ चुके हैं, और टैक्सी ड्राइवर्स हैं, होटल एसोसिएशंस के लोग हैं, और इसी तरह से जो है ट्रांसपोर्ट में जो लोग अपना बिजनेस करते हैं या उसमें अपना ऑक्यूपेशन जिनका है, इन सभी लोगों के कलेक्टिव एफर्ट से हमको सूचनाएं का आदान प्रदान होता है और हम लोग जो है लगातार इस दिशा में एक ठोस कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट शिमला में कर रहे हैं। पिछले कल भी अगर आप जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं उस दिशा में भी अगर मैं आपसे शेयर करता हूं तो एक रंजन गैंग करके एक सिंडिकेट बना के रखा था कोटखाई एरिया में, जिसमें 15 से 20 जो नौजवान युवा युवतियां जो हैं वो स्लिप पाए गए थे और कुछ दिन पहले हमने 3 लोग गिरफ्तार किए थे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है 6 और लोग गिरफ्तार किए थे और कल 2
युवतियों को भी हमने गिरफ्तार किया जो बड़ी एक्टिव अपना रोल और पार्टिसिपेशन ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज में जो है वो शामिल थी। और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और भी बहुत सारी गिरफ्तारियां इसमें होंगी। जब तक हम ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे और हमको सोशल पार्टिसिपेशन और कॉपरेशन इस दिशा में जब मिल रही है तो अच्छे परिणाम, शिमला जिला का अच्छा कंट्रीब्यूशन है इस दिशा में, जो आने वाले समय में जो है वो काफ़ी प्रभावी और इफेक्टिव और काफ़ी वैल्यूएबल साबित होगा। I'm very confident that the people will bless me with their love, with their votes, because we are about to form government in Maharashtra, and that is for sure. Sorry? Many more candidates will come. I think it's good for democracy. A lot of parties should fight. What is important is Mahavikas Aghadi will win. All of that will happen. What is important is to defeat Eknath Shinde and BJP that has looted Maharashtra. आप देख रहे हो ये एटमॉस्फेयर जो है, ये वातावरण जो है वो अद्भुत है। यही जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, और इसी को लेके आगे मैं नामांकन भरने जा रहा हूँ। और महाराष्ट्र में भी हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो महाराष्ट्र की अस्मिता की है, वो लड़ेंगे। कंडीशंस क्या क्या रहेंगी, तैयारियां क्या हैं और एनडीआरएफ किस तरह से तैयार है? देखिए, आज ये सवेरे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हुआ है और शाम में, रात में और अर्ली सवेरे के बीच में ये लैंडफॉल होने की संभावना है। इसको देखते हुए जो उड़ीसा में है हमारी 20 टीमें तैनात हैं और वेस्ट बंगाल में हमारी 17 टीमें तैनात हैं। इसके अलावा लैंडफॉल का जो इफेक्ट होता है दूसरे स्टेट्स में, इंटीरियर एरियाज में, उसको देखते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारी टीमों की तैनाती की जा रही है। जिस तरह से आपने बताया कि लेट नाइट में होगा, यानी अर्ली नेक्स्ट डे होगा 25 को, तो ये टाइमिंग कुछ टाइम फ्रेम हुआ है कि इतने बजे के आसपास होगा, और मेनली उड़ीसा को हिट कर रहा है या उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों को हिट कर रहा है, किस तरह से? देखिए, जो मेन इम्पैक्ट स्टेट्स हैं वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल हैं। जो लैंडफॉल का एरिया है वो पुरी और सागर आइलैंड्स वेस्ट बंगाल के बीच में ये एरिया में लैंडफॉल होगा। खास तौर पर जो इम्पैक्ट एरिया होगा वो भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में बताया जा रहा है। इसको देखते हुए उड़ीसा में खास तौर पर 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो मोस्ट अफेक्टेड बताए जा रहे हैं, जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसमें पुरी है, गंजाम है, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, ये सब जो मेन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, वो अफेक्टेड होंगे। अभी फिलहाल जो सूचना हमारे पास है उसमें क्लाउडी कंडीशंस है, वहाँ पर लाइट और मॉडरेट रेन्स हो रहे हैं। अभी जो तैयारी चल रही है, इवैक्यूएशन जो है, तकरीबन 1,70,000 से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा चुका है अभी उड़ीसा में। इसके लिए शेल्टर्स बनाए गए हैं, तकरीबन 7,200 शेल्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें से तकरीबन 800 परमानेंट शेल्टर्स हैं, करीब 6,000 जो है वो टेम्पररी शेल्टर्स बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की 20 टीमें लगी हुई हैं। इसके अलावा ऑर्डरएफ जो है स्टेट फोर्स वो लगी है, 51 टीमें उनकी हैं, उनकी स्मॉल टीम्स होती हैं, 10-10 लोगों की टीम होती हैं। इसके अलावा जो फायर सर्विसेज हैं उड़ीसा के, उनकी भी 220 टीमें लगी हैं, जो स्मॉल टीम्स होती हैं। तो ये बड़े पैमाने पर काफ़ी कोऑर्डिनेशन के साथ ये कार्रवाई की जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि लैंडफॉल से पहले मैक्सिमम इवैक्यूएशन कर दिया जाए। जो है वो लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आकी गई है, तो लगभग इससे कितना डैमेज होने का खतरा रहता है? बिल्कुल, देखिए, 100 की स्पीड एक अच्छी स्पीड है और अगर इसमें अगर प्रॉपर केयर और प्रिकॉशन नहीं लिया जाएगा, खास तौर पर यह इंश्योर किया जाएगा कि जो लोग लैंडफॉल के समय जो भी लोग हैं वो बाहर नहीं रहने चाहिए, कन्फाइंड रहना चाहिए इंडोर्स में, सेफ प्रिकॉशंस पर। ये हमारी हिदायत है सब लोगों को, और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स जब किया जाता है तो इसमें ये चीज़ बताई जाती है खास तौर पर, और ये इंश्योर भी किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और एनडीआरएफ के थ्रू। We are fully geared up for the cyclone. We have 182 teams of the fire and rescue services of Odisha, which is nearly about 2,000 people, and we will cover all the 14 districts which will be affected. But actually the districts which are more impacted, we have more people there. Besides, we have about 20 teams of the NDRF. They are a specialized organization. Though all of us have similar equipment profile, then we have, they will be about 500 people. And then we have
the state disaster force, which is another 400 people. So we have nearly 3,000 rescue workers in place. Other than that, we have mobilized some teams from the forest department. So there are enough rescue workers to restore road connections, road connectivity and things like that. So we hope this cyclone with a wind speed of 110 kilometers and so, we should be able to deal with the aftermath. At the moment, the challenge is to evacuate people. आज हमारे 2-3 लेवल पे रिव्यू मीटिंग हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे तरफ से भी बहुत सारे रिव्यू लिए गए हैं। यहाँ पे जो कलेक्टर सर थे पहले उन्होंने भी रिव्यू लिए हैं। तो हमारे जितने भी साइक्लोन सेंटर है वहाँ पे अभी लोगों को इवैक्यूएट करना आज मॉर्निंग से ही शुरू हो गया है। शाम 4 बजे तक हमारे करीब 25 से 30 हजार के बीच हमारा इवैक्यूएशन हो चुका है। रात को हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 70,000 से भी ज्यादा इवैक्यूएशन हो जाए और कल 11 बजे तक जितना हमारा टारगेट है अराउंड 2.5 लाख इवैक्यूएशन का हमारा टारगेट रहेगा। सारे जो हमारे साइक्लोन सेंटर्स है, परमानेंट साइक्लोन सेंटर्स और कुछ स्कूल्स जो टेम्पररी साइक्लोन सेंटर्स को हमने कन्वर्ट किया है, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज हो, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए ब्लॉक लेवल पे हमारे बीडीओज है, पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर्स है, उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और जो भी लोग आ रहे हैं उनको कुक फूड हो और वहाँ पे सब फैसिलिटी हो, इसके लिए सबको इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने दिया है। और पुलिस के साथ भी सहयोग के साथ जहाँ पे भी लोग आने के लिए राजी कुछ किन्हीं वजह से ना हो रहे थे, उनको भी हमने कन्विंस करके सबको हाँ, मैं संदीप कुमार बेहरा, सहकारी मत्स्य अधिकारी धामरा में हूँ। तो हमारे भद्रक के जुडिशन में 911 रजिस्टर्ड बर्ड है। वो टोटल 10 एफएलसी है। वो तो सब एफएलसी में बोट आ गया है लैंडिंग सेंटर में। और हम लोग का अनाउंसमेंट जो था गवर्नमेंट की तरफ से 20 तारीख से शुरू हुआ था और ये फिशिंग बंद 26 तारीख तक किया गया है। अभी सभी बोट जितना भी जेटी में था उनको हम लोग नदी के अंदर में जाने के लिए, सेफ्टी रहने के लिए भेज दिया है। 26 अक्टूबर तक है, तो फिशिंग जाने के लिए मना किया गया है। वो यहाँ पे रहेंगे तो उनका अगर पवन मतलब हवा का तेज होगा तो वहाँ पे खुद के बीच में हीटिंग हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग बोला है कि नदी जितना मनतेई नदी है वहाँ जाने के लिए हम लोग बोल दिया है उनको सब। और उनको उनका नाली है जो बोलते हैं उनके अंदर वो सब रखेंगे। सिक्योरिटी वो उनका रेगुलर रखते हैं उनका बोट। और एकदम महाविकास आघाड़ी लोगों को जो एक संभ्रम था कि क्या होगा, हमने सबने मिलकर फाइनल किया। पूरा शेड शेयरिंग का प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुका है और हम लोग संख्या के बल पे चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, तो हम लोग मेरिट पे। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करना है तो इसमें सीट शेयर कितना किसने लड़ा ये मायना नहीं रखता है, मायना ये रखता है कि कौन जीतेगा। तो हमारा पूरा आज हम सीट शेयरिंग के बाद में हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम 200 के पार जाएंगे। और निश्चित रूप से ये महाभ्रष्ट महाचोर युति जो है पूरे महाराष्ट्र को बर्बाद कर चुकी है, इनको सत्ता से हकालने का काम हम लोग जरूर करेंगे। जनता करेगी, जनता ने भी मन बना लिया है। जो एक महाराष्ट्र में ऐसी सरकार इसके पहले कभी देखी नहीं थी। 30 से 35% तक कमीशन और करप्शन बढ़ चुका है। खुलेआम महाराष्ट्र को लूटा जा रहा है। तो जनता ने राय बनाया है कि महाविकास आघाड़ी को जैसा पार्लियामेंट में एक ताकत हमें दी और वैसे ही असेंबली में भी जनता को परिवर्तन चाहिए, वो मिलेगा।
नाही, ते भेटायला आलेत. आमचे संबंध त्यांच्याशी जुने संबंध आहेत आणि त्यामुळे ते मला भेटून गेले आणि त्यांनी काही प्रस्ताव दिला आहे. मी त्यांना सुचवलं आहे की तुम्ही प्रदेशाध्यक्ष आमचे त्या जिल्ह्यातले आहेत नानाभाऊ पटेल, त्या प्रदेशाध्यक्षांची भेट घेऊन तुमचा प्रस्ताव त्यांच्याकडे देण्याची साठी मी त्यांना सांगितलेला आहे. चतरा में जिस तरीके से जन सैलाब उभरा है, मैं चाहता हूं ये सारी तस्वीरें आप लोग दिखाएं। बरसात की चिंता ना किए बिना जिस भारी संख्या में जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा था और उस जन सैलाब में जो उत्साह देखने को मिला, एक बात तय है कि यहाँ एनडीए के हमारे प्रत्याशी जनार्दन पासवान जी की जीत जहाँ एक तरफ सुनिश्चित है, तो वहीं अब वो कितने अंतर से जीते हैं बस इस पे मेहनत करनी है। चतरा की जनता ने मन किया है प्रधानमंत्री जी की सरकार, उनकी सोच वाली सरकार को झारखंड में बनाने का, और उसके लिए उनके हर एक सिपाही जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए के प्रत्याशी जनार्दन पासवान जी भी हैं, उनको जिताने जा रहे हैं। देखिए, जब जनता मन बना लेती है तो फिर उसको सामने और कोई नहीं टिकता है, और ये जन सैलाब और ये उत्साह दिखा रहा है कि जनता ने मन बना लिया। A recent significant development that underscores the importance of defense dialogues on the global stage. India and China have been involved in talks both at diplomatic and military levels to resolve their differences in certain areas along the LAC. Pursuant to the talks, broad consensus has been achieved to restore ground situation based on the principles of equal and mutual security. The consensus achieved includes patrolling and grazing to traditional areas. This is the power of engaging in continuous dialogue, because sooner or later solutions will emerge. And I think there is no better place to highlight this power of dialogue than this platform of Chanakya Defense Dialogue. Friends, the topic on which I have been asked to speak today is India's vision for development and security. I consider this is a challenge as well as an opportunity. It is a challenge because the subject is broad and multifaceted, touching on historical, economic, and strategic dimensions that are difficult to fully summarize in a single discussion. Yet, it is also an opportunity to engage in a meaningful dialogue with esteemed experts and thinkers like you, and especially so with the participation of our friends from various foreign countries. I am pleased that you have named this defense dialogue after Acharya Chanakya. Whenever we discuss the economy and the security, Acharya Chanakya stands before us as one of India's greatest thinkers. We all know about his book, Arthashastra, which, although written on political systems, also incorporates many elements of development and security. The English literal translation of the Chanakya's famous book, Arthashastra, is economics. So I will begin by talking about economics. I would like to draw your attention to an interesting fact about the origin of the word economics. Some of you might know that this word originates from oikonomio, which comes from two words, oikos, meaning household, and nomoi, meaning rules or laws. Simply put, it refers to the rules created for managing a household. Long before the rise of capitalism and the commercial economies, the household was the center of economic activities, and all economic activities revolved around it. Over time, with the socio-mental changes, the center of the economy shifted from household to society and later to the nation, and today we talk about international or global economy. Throughout history, whether in pre-capitalist society or modern times, one of humanity's primary endeavors has been to increase and strengthen its
military welfare. Even the father of the modern economics, Adam Smith, defined economics as the science of wealth. As society has advanced economically, new sectors and technologies have played a significant role in shaping